Now next, question number 4.11, magnetic effects of current and magnetism का 4.11, in a chamber a uniform magnetic field of 6.5 gauss, 1 gauss equals to 10 to power minus 4 टेस्ला होता है. आपको पता होना चाहिए 1 टेस्ला equals to 10 to power 4 gauss या 1 gauss equals to 10 to power minus 4 टेस्ला is maintained. An electron is shot into the field with a speed of 4.8 into 10 to power 6 meter per second, normal to the field. Now electron is moving, means charge particle is moving normal to the plane, right? Explain why the path of the electron is in a circle, determine the radius of circular path, right? So first question से पूछा है explain why the path of the electron is a circle, right? तो इलेक्ट्रॉन अगर परपेंडिकुलरली मूव करता है, चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, इट इज मैग्नेटिक फोर्स विच इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, मीन्स क्यू वी बी साइन थीटा. नाउ if the velocity means moving of the charge particle velocity, direction of velocity and magnetic field is perpendicular as given in this question, velocity 4.8 into 10 to the power 6 normal to the field, so angle between V and B is 90, so force is QVB sin 90 is 1. Clear? But now what is the direction of force QVB sin 90 equals to 1 होता है, आपको पता है. So magnetic force की वैल्यू तो हमने निकाली, बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? तो मैग्नेटिक फोर्स, इट इज द रिजल्ट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, वी और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स आता है. तो आपको जैसा पता है क्रॉस प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, ठीक है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई आएगा. तो अगर ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट एफ विच इज परपेंडिकुलर टू फोर्स एंड perpendicular to B also, as well as V as well as B. So according to cross product, the magnetic force is perpendicular to velocity and this magnetic force is perpendicular to magnetic field also. So if acting force is perpendicular to the direction of velocity, then कहीं भी आप देखोगे फोर्स अगर velocity की direction के perpendicular act होता है, then this force changes only direction of particle. And if it changes the only direction of particle, that means particle moves on circular path in which velocity direction continuously changes due to perpendicular force, right? So the particle move on circular path and this force provides centripetal force also. This force, magnetic force जो हमने निकाला, magnetic force provides centripetal force for circular motion. This force provides centripetal force, और centripetal force अगर मिलता है तो कौन सा मोशन होता है? सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन के लिए particle needs centripetal force and this force provides by this magnetic force which is perpendicular to velocity, right? So this force provides magnetic force, so this force, magnetic force provides centripetal force, this force is QVB sin 91 हो गया, and centripetal force, this provides centripetal force. So what is the formula of centripetal force? Formula of centripetal force is mv square by r. Clear? So v से v cancel होगा, the radius r equals to होगा mv upon qb. The radius formula is mv upon qb. ठीक है, फॉर्मूला हमें ध्यान होना चाहिए. मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट करके भी रेडियस का फॉर्मूला बना सकते हैं. जरूरी नहीं है कि सारे फॉर्मूले हम रटे लर्न करें, नहीं, हम कैलकुलेट करने का, डिराइव करने का तरीका भी सीख सकते हैं. इससे हमने क्या निकाला? रेडियस का फॉर्मूला, क्योंकि नेक्स्ट डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट. सो रेडियस निकालना है. इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, मास है इलेक्ट्रॉन का, स्पीड है 4.8 इंटू 10 टू पावर 6 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 6.5 गॉस. सो सॉल्व करें इसको. सो मैग्नेटिक फील्ड, अब देखो आर की वैल्यू, रेडियस फाइंड करना है. मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg. मास क्या होता है? 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg. वेलोसिटी है 4.8 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड.
चार्ज इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड इज 6.5 गॉज। गॉज मीन्स होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, यू हैव टू कन्वर्ट मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला, राइट। सो दिस वैल्यूज आपने वैल्यू सारी पुट कर ली। एक बार चेक कर ले स्पीड की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻6, राइट, 4.8 इंटू 10⁻6, करेक्ट। सो अब इस फॉर्मूले से हम रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेडियस अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो वैल्यू मिलेगी 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, वी कैन से 4.2 सेंटीमीटर। Clear? So this is the question number 4.11. Now next question number 4.12, which is part of 4.11. Obtain the frequency of revolution of the electron in the circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron? So frequency find करना है, ठीक है। frequency means time period find करना है, time period का invert frequency होगा। So time period मतलब time to complete one circular path, एंड वन सर्कुलर पाथ की जो डिस्टेंस होती है दैट इज 2πr एंड v। फॉर्मूला ऑफ रेडियस जो हमने पढ़ा अभी, फॉर्मूला ऑफ रेडियस इज mv/qb, mv/qb। सो v से v कैंसिल होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2πm/qb। सो इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। सो सिमिलर फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/t। So formula of frequency is qb/2πm, right? Clear है? Does the answer depend on the speed of electron? No, because frequency और time period दोनों ही speed का फॉर्मूला तो इसमें आ नहीं रहा, ठीक है। So frequency कैलकुलेट जरूर कर सकते हैं हम, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें qb/2πm। q चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, b गिवन था 6.5 गॉज, 2π और m इलेक्ट्रॉन का मास डिवाइड करेंगे तो सारी वैल्यू रखने के बाद हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है qb/2πm, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, b 6.5 गॉज मीन्स 10⁻⁻4 टेस्ला में आ जाएगा, अपॉन 2, पाई की वैल्यू 3.14, मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31, कैलकुलेट किया डिवाइड किया, ये आया 18 इंटू 10⁻6 हर्ट्स, और वी कैन से 18 मेगाहर्ट्ज। ये आंसर है इसका, ठीक है। सो फर्स्ट कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होगी और ये फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती, हमने बता दिया देखो स्पीड से स्पीड कैंसिल, प्रूव भी कर दिया। टाइम पीरियड भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पीरियड भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी भी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखो 4.13, क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बड़े बड़े हैं, रीड करने में टाइम लग जाता है। अच्छा क्वेश्चन देखो, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 30 टर्न्स, रेडियस 8, कैरिंग अ करंट 6, सस्पेंडेड वर्टिकली इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला। द फील्ड लाइन्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। नॉर्मल ऑफ द कॉइल मतलब एरिया ऑफ द कॉइल, तो एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। देखो अब एक्चुअली जैसे हमें पता है कि इसमें टॉर्क पूछा है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, टॉर्क इक्वल्स टू बीना साइन थीटा। टॉर्क क्या होता है, बीना साइन थीटा, एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो बी को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इट इज बी, एंड नॉर्मल टू द कॉइल इट इज ए, नॉर्मल टू द कॉइल इट इज ए। जो नॉर्मल टू द कॉइल आपको बताया है ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल टू द कॉइल it is area and field lines is B. So that means angle theta की वैल्यू क्लियरली गिवन है 60 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन एंड बीना में n की वैल्यू 30, रेडियस सर्कुलर कॉइल है तो एरिया निकलेगा पाई आर स्क्वायर से, 8 सेंटीमीटर रेडियस है, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकलेगा। I है करंट 6 एम्पियर, राइट, एंगल 60 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नेटिक टॉर्क that must be applied to prevent the coil from turning, right? तो मतलब जितना टॉर्क अप्लाई, जैसे कॉइल को हम सस्पेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जो टॉर्क लगा इतना टॉर्क लगता है तो कॉइल घूमती है, हमें अगर उसको रोकना है तो इतना ही टॉर्क हमें अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो इसी फॉर्मूले से होगी, कितना टॉर्क उस पर लगने वाला है इसका अपोजिट हम लगाने वाले हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो
इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इजीली। टॉर्क की वैल्यू बीना साइन थीटा, बी की वैल्यू 1 टेस्ला, आई की वैल्यू 6, नंबर ऑफ टर्न्स 30, एरिया पाई, रेडियस कितना है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देन साइन थीटा 60 डिग्री, दैट विल बी √3/2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ठीक है, तो इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे तो हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं इसका। तब हमें मिलेगा टॉर्क की वैल्यू, और टॉर्क कैलकुलेट होके मिलेगा हमें आंसर जो आएगा टॉर्क का 3.1। इसको पूरा सॉल्व करोगे ना 3.1 न्यूटन मीटर आएगा ये टॉर्क। ठीक है, तो निकाल दिया। सेकेंड पार्ट देखो इसका, वुड योर आंसर चेंज इफ द सर्कुलर कॉइल ए इन फर्स्ट पार्ट ए वे रिप्लेस बाय अ प्लेनर कॉइल ऑफ सम इरेगुलर शेप दैट एनक्लोज द सेम एरिया। अब मुझे बताओ टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क का फॉर्मूला है बीना साइन थीटा। अब यहाँ पे एरिया है ए, तो ये जो ए है एरिया, ये एरिया अगर स्क्वायर कॉइल होती है तो ए स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल कॉइल होती है तो एल इंटू बी होता है, सर्कुलर कॉइल होती है तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ शेप के बारे में तो बात नहीं हो रही, एरिया की बात हो रही है। एरिया कोई भी रखो आप, अगर वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कुछ भी हो, एरिया कैलकुलेट करके रखना है, वो किसी भी शेप का एरिया हो। तो क्या आपका टॉर्क डिपेंड करेगा एरिया पर? नहीं करेगा, तो इसका आंसर आएगा नो। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा? नो, बिकॉज टॉर्क डजंट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ द एरिया, it depends upon area, that means magnitude of the area. Clear? So it is 4.13. Now next question 4.14. Two concentric circular coils X and Y of radii 16 cm and 10 cm respectively lie in a same vertical plane containing the north to south direction. Plane containing the north-south direction. Coil X has 20 turns, carries a current 16 ampere. Coil Y has 25 turns, carries a current of 18 ampere. The sense of current in X is anti-clockwise and in Y clockwise. For an observer looking at the coil facing west, तो ऑब्जर्वर का भी देखना, ऑब्जर्वर का फेस कहाँ है, वेस्ट की तरफ है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल्स एट देयर सेंटर। दोनों कॉइल्स कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स हैं, तो सर्कल का सेंटर तो एक ही होगा। ठीक है, अब सेंटर एक है तो हमें निकालने को बोला है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है, राइट। तो आप देखो इन दोनों कॉइल्स को एक सेम वर्टिकल प्लेन, मतलब प्लेन हमारा वर्टिकल होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेनिंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वर्टिकल प्लेन है जिसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी और वैल्यूज़ आपको दे रखी है। तो डायग्राम में यहाँ पे बनाऊँ, देखो आपको नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन ये ले लेते हैं ऐसे। ये एक सर्कुलर कॉइल ये ले लिया, एक कॉइल की रेडियस बड़ी है, एक की छोटी है, तो दूसरी कॉइल ये ले लिया मैंने। डायरेक्शन की बात करूँ अगर, तो डायरेक्शन देखो आप, डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये ले लेते हैं, नॉर्थ साउथ, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन ये ले लेते हैं। इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। ठीक है, और ये आपका सेंटर आएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट सेंटर होता है। ठीक है, ये पॉइंट सेंटर आ गया आपका, ये सेंटर है, राइट। अब आप देखो वैल्यूज तो आपको दे रखी हैं, ठीक है। द सेंस ऑफ करंट एक्स इन एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एंड वाई, तो एक्स आपका ये ले लिया मैंने बड़ा वाला, वाई है नीचे अंदर वाला, क्योंकि एक्स की रेडियस कितनी है 16 है, और y की रेडियस कितनी है, y की रेडियस आपकी 10 है, y की रेडियस है 10। ठीक है, 16 एंड 10। करंट भी अलग अलग दे रखा है, डायरेक्शन आपकी अलग अलग है। द करंट इन x इज एंटी क्लॉकवाइज, x के अंदर ले रहे हैं हम करंट एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन है करंट की इन x, ये हो गया ix, और एंड y क्लॉकवाइज, मतलब y में करंट जो फ्लो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आउटवर्ड्स, मतलब जो Bx आएगा वो आएगा आउटवर्ड्स। ठीक है, और जो By होगा, By में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो By में करंट अगर क्लॉकवाइज में थंब इनसाइड है मीन्स इनवर्ड्स।
तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स में कितना एंगल है, आउटवर्ड्स है, इनवर्ड्स है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे निकालना है ये होगा आइदर बी एक्स माइनस बी वाई और बी वाई माइनस बी एक्स, डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। उसी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, राइट। तो हम यहाँ पर इन वैल्यूज से मैग्नेटिक फील्ड निकालें, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, क्योंकि आपको पता है बी एक्स भी निकालना पड़ेगा, बी वाई भी निकालना पड़ेगा। टर्न्स के साथ दे रखा है, कॉइल है, तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है। कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर आपको बी एक्स चाहिए तो बी एक्स हम निकालेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने रखेंगे n 20 टर्न्स, आई कितना है 16, तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स कितने 20, कितना करंट 16, रेडियस कितना है 2, रेडियस कितना है x का 16 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻², पूरा एक कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जिस तरह से x का निकाला उस तरह से y का भी निकालेंगे, ठीक है। तो x का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सॉल्व करोगे ये आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴, और इसी तरह से y का निकालोगे तो bx का जो आया मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, और by का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये आएगा 9 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकालने पड़ेंगे bx और by। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिए तो आपको दिख रहा है कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है। bx की वैल्यू है 4 पाई जबकि by की वैल्यू है 9 पाई, तो ये करेक्ट आंसर ये वाला लेंगे हम। तो 9 पाई माइनस 4 पाई करोगे तो आंसर आएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आया वो आएगा 5 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। अब मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, अब आपको बी की डायरेक्शन बतानी है और वो भी बतानी है ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल्स फेसिंग वेस्ट, कॉइल्स की तरफ देख रहा है ऑब्जर्वर और उसका फेस किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। इसका मतलब आप समझो ऑब्जर्वर जो होगा वो कहाँ होगा, इसका मतलब जो ऑब्जर्वर होगा वो आपका यहाँ पर इस तरह से ऑब्जर्वर यहाँ होगा, ऑब्जर्वर यहाँ होगा, उसकी आइज़ इस तरह से होंगी, उसका आइज़ किस तरफ होगी, जहाँ उसका फेस होगा, और फेस है वेस्ट की तरफ, ठीक है। फेसिंग कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, तो ये वेस्ट की तरफ देख रहा है। अब उसको पहली कॉइल दिख रही है, दूसरी कॉइल दिख रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या दिखेगा उसको, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। आपको पता लग गया कौन सा बड़ा है, बी वाई बड़ा है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड जो रिजल्ट आएगा वो बड़े वाले के अकॉर्डिंग, बड़े वाले के डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि रिमेनिंग जो होगा 5 पाई वो वाई की डायरेक्शन में होगा। अब वाई कौन सा, ये वाला है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का है, इनवर्ड्स है, ठीक है। बी वाई हमने क्या लिखा, इनवर्ड्स, और हमें पता लगा बी वाई इज ग्रेटर देन बी एक्स है। तो जो सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो वाई की डायरेक्शन में आएगा, सेंटर पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपका वाई की डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। वाई की डायरेक्शन कौन सी होगी, इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स मतलब आप समझ गए, करंट इसका क्लॉकवाइज से आ रहा था, इनवर्ड्स है, और ये आउटवर्ड्स है, ठीक है। बट अब ध्यान से देखें तो हमें डायरेक्शन बतानी है इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, और ये जो कॉइल दी है, 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स लाई इन अ सेम वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन करती हैं, वर्टिकल प्लेन है और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन करती हैं, ठीक है। तो ये जो मेरे ख्याल से अपने कॉइल बनाई ये वाली, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन कैसे करेगी, वर्टिकल प्लेन है, तो डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज करें, और इसकी डायरेक्शन जो हमने लिखी थी पहले उसको वर्टिकल प्लेन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा आपको, दोबारा से डायरेक्शन समझा रहा हूँ। देखो मैं, जो आपका प्लेन है वर्टिकल प्लेन है कॉइल्स का, और वर्टिकल प्लेन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन करते हैं, ठीक है।
तो वर्टिकल प्लेन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन कर रहे हैं हम इसमें। कॉइल जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन करेगी, राइट। सो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वर्टिकल प्लेन में कैसे आएगी वो देख लो। मतलब आप समझ लो उसको, जैसे हमने प्लेन बनाया था, हमने बनाया था हॉरिजेंटल प्लेन, ये था आपका हॉरिजेंटल प्लेन। इसमें कौन सी डायरेक्शन हो गई ये वाली, ईस्ट, ये वेस्ट, और ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ये डायरेक्शन होती है साउथ, ठीक है। तो हमने, अगर मैं एक्सिस के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये x हो गया, ये माइनस x हो गया, ये आपका z हो गया, अंदर माइनस z, और ये z हो गया, ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ साउथ हम क्या मान लें, z, और ईस्ट वेस्ट क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं। ये आपको पता है डायरेक्शन तो, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन हमें पता है, तो इसको तो हम कर दें स्मॉल। अब यहाँ पर हम क्या करें, इसकी जगह एक्सिस मानते हुए वर्टिकल प्लेन लेते हैं हम। इसकी जगह हम क्या लें, वर्टिकल प्लेन ले लेते हैं, ठीक है। ये तो डायरेक्शन हमारी हो गई नॉर्थ साउथ वाली। इसकी जगह हम क्या करें, अब वर्टिकल प्लेन लें जिसमें नॉर्थ साउथ होना चाहिए। अब नॉर्थ अंदर की तरफ है, साउथ इस तरफ है। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन हमने कैसे ली, नॉर्थ का है अंदर की तरफ है, साउथ का रहता है, ये प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन है, साउथ आप बाहर की तरफ, नॉर्थ अंदर की तरफ, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। अब मैं वर्टिकल प्लेन ले रहा हूँ ऐसा, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन में क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आनी चाहिए, ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन ऐसे लेंगे, और ये वर्टिकल प्लेन है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आनी चाहिए उसकी। तो वर्टिकल प्लेन जो हम बनाएं, मतलब हम कौन सा प्लेन लेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड वाला बताओ। एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स डायरेक्शन मतलब कौन सी होती है, ईस्ट होती है। और जेड डायरेक्शन में जो मैंने बताया ये कौन सा है, साउथ है। इसके अंदर वेस्ट है, ईस्ट के अपोजिट क्या है, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होगा, साउथ के अपोजिट नॉर्थ होगा, ठीक है। तो हमारा जो प्लेन दिख रहा है हमें, जो वर्टिकल प्लेन होगा जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन करेगा, वो ये वाला प्लेन होगा, वो प्लेन होगा ये वाला, इस तरह से वो ये प्लेन आएगा। मतलब इस प्लेन को मैं बोल सकता हूँ कौन सा, ये y हो गया, ये z हो गया, तो इसको बोलते हैं YZ प्लेन, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे ऐसे अच्छी तरह समझ रहे होंगे। YZ प्लेन कौन सा होता है, YZ प्लेन, ठीक है। ये तो होगी x एक्सिस, ये आपके x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये आपकी z एक्सिस है। तो ये जो प्लेन मैं बनाता हूँ ऐसे, ये वाला इस तरह से, ये कौन सी एक्सिस है, z, और ये कौन सी एक्सिस है, y। तो y और z का प्लेन है ये वाला। ये एक्सिस हो गई z, मतलब जो उसकी इस तरह की साइड आ रही है ये z पे आएगी, और ये जो साइड आ रही है ये y पे होगी, तो y और z। तो ये प्लेन कौन सा हुआ, YZ प्लेन। जो कॉइल्स हैं वो इसके अंदर हैं, तो कॉइल जो आएंगी ना वो दोनों इसके अंदर आएंगी, ये BY है और ये BX है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो BY में डायरेक्शन आ रही, और फेस आप देखो, जो ऑब्जर्वर था ना, ऑब्जर्वर वेस्ट की तरफ फेसिंग था, मतलब ऑब्जर्वर इस तरह से देख रहा है इसको, यहाँ से देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है ये, ठीक है। अब ये प्लेन में दोनों कॉइल्स इस तरह से हैं, YZ प्लेन में है। अब YZ प्लेन में x में तो y में आ रही है क्लॉकवाइज, y में क्लॉकवाइज, और x में एंटी क्लॉकवाइज। ये x ले लिया था, ये y ले लिया था हमने। BY की जो वैल्यू आएगी, अब क्लॉकवाइज है, एक तो है एंटी क्लॉकवाइज और एक आ रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। कैरीज अ करंट, कॉइल y टर्न्स दे दी है। सेंस ऑफ करंट इन x इज एंटी क्लॉकवाइज एंड y इज क्लॉकवाइज फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग कॉइल फेसिंग वेस्ट। देखिए जो ऑब्जर्वर है इसको वेस्ट में देख रहा है इस तरफ, तो इसके लिए, मतलब ये जो ऑब्जर्वर यहाँ है, इसके लिए इस कॉइल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको देखनी है। इसमें कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से, इसका क्लॉकवाइज कौन सा है उसके अकॉर्डिंग करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर आप देखो y एक्सिस के लिए अगर ये कह रहा है क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज इसके हिसाब से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज भी इसके हिसाब से आएगा। तो हमें पता है कौन सा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर आ रहा है, y, तो हम केवल y की बात कर लें, BY की डायरेक्शन क्या होगी उसकी बात कर लें, और y में डायरेक्शन क्या हो रही है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, y में डायरेक्शन, y में करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब मैं ऑब्जर्वर खुद को सपोज करूँ कि मैं ऑब्जर्वर इधर आ गया, मेरे सामने दो कॉइल्स हैं, एक ये कॉइल है, एक इसकी बड़ी वाली कॉइल है, दोनों कॉइल है। y वाली कॉइल छोटी सी है, x वाली कॉइल बड़ी है। तो मुझे बताओ y कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्लॉकवाइज।
तो क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से आएगा, क्लॉकवाइज इस तरह से बनाना पड़ेगा ना। ये तो होता है एंटी क्लॉकवाइज मेरे हिसाब से। ऑब्जर्वर मैं हूँ, मेरा जो फेस है वो वेस्ट की तरफ है, तो मेरे को कॉइल में ये कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये तो आएगी एंटी क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन आएगी क्लॉकवाइज, ये वाली, ठीक है। तो ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है वाई वाले में, तो वाई वाले में डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज है तो फिंगर्स को अगर मैं क्लॉकवाइज रखूँ तो थंब मेरा कहाँ जा रहा है, फिंगर्स को अगर मैं क्लॉकवाइज रखता हूँ, मैं ऑब्जर्वर हूँ, मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, तो करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो थंब कहाँ है, कौन सी डायरेक्शन में है, थंब है वेस्ट डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया हमारे पास ये आएगा वेस्ट डायरेक्शन में। बी वाई के लिए हम कहेंगे वेस्ट और बी एक्स के लिए कहेंगे ईस्ट। तो आपको जो आंसर आएगा, लास्ट जो आंसर आ रहा है ये आएगा टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं, इसमें मेन रोल किसका होगा, ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर है टुवर्ड्स वेस्ट, मतलब मैं खुद को ऑब्जर्वर मान लेता हूँ। मेरे सामने ये वाला जो प्लेन है ये है मेरा YZ प्लेन, और इस प्लेन में नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन होती है, ईस्ट वेस्ट तो नहीं होती है मगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कंटेन होती है इस प्लेन में, ये जो प्लेन आ रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट Y कॉइल अंदर है, X कॉइल भी अंदर है, दोनों कॉइल इस प्लेन में है। मुझे पता है डायरेक्शन दोनों हैं, बट बड़ा मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, Y वाला, तो उसकी डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है Y वाली। Y डायरेक्शन मुझे पता लगा, Y में करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज। अब मुझे क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज कौन सा है, क्लॉकवाइज ये वाला है, ये होता है क्लॉकवाइज मेरे ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। तो आप भी वैसे इमेजिन करोगे, खड़े होकर मेरी तरह खड़े हो जाओ और आप वेस्ट की तरफ देखो, वेस्ट हमने उधर इमेजिन किया, इधर ईस्ट है, उधर वेस्ट हमने इमेजिन किया है। तो वेस्ट की तरफ खड़े हो और आपके सामने जो दीवार है ये आपका प्लेन है, तो जो कॉइल है उसमें उस दीवार पर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाओ, उस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स को घुमाओ, तो अंगूठा आपका उधर की तरफ जिधर आप देख रहे हो उधर ही आएगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम बनाएंगे ना, तो अंगूठा हमारा जिधर हम फेस कर रहे हैं, मतलब वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो वेस्ट की तरफ आएगा। अब मैं आपकी तरफ फेस कर रहा हूँ तो मेरा डायरेक्शन होगा साउथ की तरफ, तो साउथ की तरफ फेस कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ आएगा। मैं वेस्ट की तरफ फेस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट की तरफ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा इसमें। तो ये था इसका आंसर, वैल्यू भी आ गई मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन भी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,